सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूट डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्डर 2 को डिस्कस किया था कि कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 3x3 ऑर्डर। सो लेट वी कंसीडर दैट वी हैव अ मैट्रिक्स. So let A matrix A equal to matrix element Aij with order 3x3, that is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33. ओके, सो ये मेरी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जहाँ पर ये सभी एलिमेंट हैं और ये बेसिकली आपका ऑर्डर है। ओके, सो इस चीज़ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स को हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। नोट, always convert 3x3 order matrix सर आपके पास मेरे कमेंट आ रहे हैं into 2x2 order. Okay, so how we will do that? So we will do this process by -1 row plus column multiplying this factor. Okay, or simply basically cofactor sign notation by using sign notation. Okay, so what are the sign notations? So sign notation are basically minus, plus, minus. Sign notation are basically plus, minus, plus, minus, plus, minus and plus, minus, plus. Okay, so these are basically the sign notation. Okay, this for the R1, this for R2 and this for R3. Simply this for C1, this for C2 and this for C3 expansion. Okay, we use these sign for respective expansion. Okay, so let's see. So determinant of A, so determinant of A, that is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay, 3x3. So by using this sign, so I am expanding with this one, so
so that will be A11. So if we talk about this one, so after leave, if we talk for this, just leave, and this is your matrix. So for A1, that will be A2, A23, A32, A33. okay, so this is the sign. The sign will be positive because I am expanding with respect to row 1. Next, minus A12. so for this one, so for A2, so for A2 is this, we will leave this one, we will leave this one and this one. okay, so that will be A21, A31 and A23, A33. okay, moreover that will be plus A13, that is equal to, so that will be, so A13 is this one, so leave this one and again this one, so it will be A21, A31 and A22, A32. okay, so that will be, so हम करते क्या है, यहाँ पे हमने R1 एक्सपेंशन को यूज़ किया है, R1 एक्सपेंशन, ओके, R1 एक्सपेंशन को यूज़ किया है और हमने R1 के एलिमेंट, आपके ये सभी एलिमेंट हैं R1 के, सो दिस इज एंड दिस इज, सो जो भी एलिमेंट लेंगे उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट रोज एंड कॉलम को छोड़ देंगे. सो दीज आर बेसिकली दी पाइवोट एलिमेंट. सो पाइवोट एलिमेंट, so pivot element are basically this one and this one and this one. so pivot element को छोड़ के रेस्पेक्टिव, तो pivot element रेस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी एलिमेंट को नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, सो नोट रेस्पेक्टिव रो और रेस्पेक्टिव rows and column, leave and write
एलिमेंट ऑफ अदर, ठीक है। सो सेम दिस वन, सेम दिस वन, same this one. Okay, so now this time we converted 3 by 3 order into 2 by 2, and now we know how to solve this one. So finally that will be a11 a22 multiply with a33 minus a23 multiply with a32 minus a12 a21 multiply with a33 minus a23 multiply with a31 plus a13 multiply with a21 a32 multiply with a22 and a31. Okay, so this is the determinant of A matrix. So finally, so determinant of A, that is equal to a11 a22 a33 minus a23 a32 minus a12 a21 a33 minus a23 a31 plus a13 a21 a32 minus a22 a31. Okay, so that is the final output of 3 by 3 matrix. Okay, so I hope so ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं एक बार हमने क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास में ये मैट्रिक्स ए हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं आपके पास में, सो दीज आर द एलिमेंट एंड दिस इज द मैट्रिक्स ए। सो एलिमेंट A11 आपकी ये रो R1 है, सो दिस इज बेसिकली रो R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ओके, एंड दिस इज C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2 एंड C3 कॉलम 3, okay. So to expand, for the expansion purpose you use this sign one, okay. So this is the expansion. So expansion R1 के रेस्पेक्ट में हम इन साइनों का इस्तेमाल करेंगे, R2 के रेस्पेक्ट में इनको करेंगे, R3 के रेस्पेक्ट में इनको करेंगे, C1 के रेस्पेक्ट में इनको करेंगे, C2 के रेस्पेक्ट में इनको करेंगे, C3 के रेस्पेक्ट में इनको करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने नीचे वैल्यू एक्सपेंड किया, तो A11 को हमने जब लिया तो यहाँ पे A11 हमने नोट डाउन किया, इससे जुड़ी हुई जो आपकी रो थी, चलिए इससे जुड़ी हुई जो आपके पास में, इससे जुड़ी हुई जो आपके पास में क्या थी, रो कॉलम थी, और इससे जुड़ी हुई जो क्या थी, रो थी, हमने उसको कैंसिल कर दिया। सो हमारे पास में जो एलिमेंट बने उनको हमने नोट डाउन कर लिया। इसी तरह से A12 के एलिमेंट को हमने राइट डाउन किया और उनके एलिमेंट को नोट डाउन किया, सिमिलरली दिस वे। सो इस तरीके से हमने 3 by 3 मैट्रिक्स को 2 by 2 में कन्वर्ट कर दिया और आंसर निकाल लिया। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एग्जांपल, फाइंड determinant A if A matrix A equal to
इक्वल टू A 0 1 0 B 0 and 1 0 C. So solution. So determinant A equal to A 0 1 0 B 0 1 0 C. ओके, सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं इस एलिमेंट को अगर लेता हूँ तो ये आपका एलिमेंट ए हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपके ये हो जाएंगे। सो बी 0 0 सी। नेक्स्ट माइनस 0 एलिमेंट लेता हूँ, तो अगर मैं इस एलिमेंट को लेता हूँ तो इसको छोड़ दूँगा मैं, वो 0 और 1, तो 0 एंड 1 0 एंड सी प्लस 1 एलिमेंट को लेता हूँ मैं, इस एलिमेंट को लेता हूँ अगर मैं तो इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा तो 0 B एंड 1 0 बचेगा। देन फाइनली द आंसर विल बी A B C माइनस 0 माइनस 0 because 0 minus 0 plus 1 0 minus B. Okay, so that will be A B C minus B. So final answer is, so determinant of A equal to ABC minus B or B equal to AC minus 1. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए एक बार में फिर से देखते हैं। हमारे को डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन किया है, R1 एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है। ओके, सो R1 एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है। सो इसके एलिमेंट हैं A 0 एंड 1, और जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उनको हम पाइवट एलिमेंट करते हैं। तो पाइवट एलिमेंट से जुड़े हुए रोज़ एंड कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ थी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो बी और ओ और 0 और सी हैं, जो मैंने यहाँ लिख लिया है। इसी तरह 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज़ ये हैं और ये हैं, ठीक है। इसी तरह 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं बात करता हूँ तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं आपकी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ये है। ओके, सो इन वैल्यूज़ को मैंने नोट डाउन कर लिया, फिर इनको सॉल्व कर लिया एंड फाइनली वी गॉट द आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सो एग्जाम्पल, find determinant of A if A equal to matrix
2 5 minus 3 4 minus 1 5 3 6 and 2. Okay, so solution. So determinant A equal to 2 5 minus 3 4 minus 1 5 3 6 2 by R1 expansion so that will be 2 minus 1 5 6 and 2 minus 5 4 3 5 2 plus minus 3, that is a 4 3 minus 1 6, so that will be 2 minus 2 minus 5 into 6 30 minus 5 8 minus 15 minus 3 24 plus 3. Okay, so that will be, so how much? So 2 minus 32 minus 5 minus 7, and that will be minus 3 minus 3 27. Okay, so that will be minus 64 plus 35 minus, that will be 81. Okay, so that will be how much? That will be minus 110. Okay, so the determinant, so the determinant, so determinant A equal to minus 110. Okay, that will be the answer. सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है ये आपको पता चला होगा, और बाकी मोर प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक वर्कशीट दे दी जाएगी, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसेप्ट के साथ साथ 2 प्रॉब्लम सॉल्व की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट करें, या कोई पर्सनल कोई डाउट है तो आप मुझे सेंड करें, उसका जल्द से जल्द समाधान करूंगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है, इसका कंटेंट वर्थ है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।